Welcome to Maths on Radio, a program catalyzed and supported by National Council for Science and Technology Communication, Department of Science and Technology, New Delhi. सोचो, सीखो, बोलो, बदलो। सोचो, सीखो, बोलो, बदलो, चमका दो दुनिया को, जीत लो इस जहां को। सोचो, सीखो, बोलो, बदलो। सिर्फ मैथ्स ऑन रेडियो के साथ 107.8 FM मस्ट रेडियो पर। plus b the whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. A plus b the whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. A plus b the whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab plus a plus b the whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab plus a plus b. Forget it, I'll do some other only some math. A upon b divided by c upon d. No. A upon b upon c upon d is equal to a upon d into, oh god, a upon b upon c upon d. A upon b. Arey Buddhu, it's a upon b upon c upon d is equal to a upon b divided by c upon d is equal to a upon b into d upon c is equal to ad upon bc. Oh my god, take a breath. How do you know so much? अरे मैथ्स ऑन रेडियो ने सिखाया। मैथ्स ऑन रेडियो नहीं सुना क्या? मैथ्स ऑन रेडियो? हाँ, अब सुनिए मैथ्स ऑन रेडियो हर रोज सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7 बजे ओनली ऑन 107.8 मस्त रेडियो। मैथ्स ऑन रेडियो लगाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विश्वजीत और फिर एक बार आपका स्वागत है मैथ्स ऑन रेडियो सीजन 2 में। आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे खेल और मैथ्स, इनके बीच में क्या रिश्ता है और वहीं पर समय और कैलेंडर, इनमें कैसे मैथ्स यूज किया जाता है। वहीं पर हम आपको ले चलते हैं कुछ स्कूली बच्चों के साथ कि वो मैथ्स के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे हम खेल जगत से। तो खेल और गणित, इनका क्या संबंध है ये जानते हैं हम आशीष और पंकज से। Welcome to the edition of Time Factor in Mathematics on Radio. I'm Pankaj. And this is Ashish. Yes, Ashish, talking about some time factor in sports. So let's talk about some mathematics and sports. Which is your favorite game? Of course, I think like the 70% population, it has to be cricket. Absolutely. So let's talk about something very interesting about cricket and mathematics. If I ask you, who is your favorite fast bowler for that matter? One bowler that intimidates me is from Australia. Brett Lee has to be. Binga, exactly, Brett Lee. Now let's assume Brett Lee has been known for bowling really very fast deliveries, about 90-91 miles per hour. Now what will happen if we try and calculate the time taken by the ball once released by Brett Lee and coming to the batsman? I'm sure we'll turn into a genius batsman. Absolutely. So let's talk about it. Assume that Brett Lee is bowling at 90 miles per hour. And that really is fast. Yes. Let me give you a conversion over here. 1 mile is supposedly 1.6 kilometers per hour. So if a mile is equal to 1.6 kilometers, then Brett Lee would be bowling at about 144 kilometers? Absolutely. Exactly. So if Brett Lee is bowling at 90 miles per hour or 144 kilometers per hour, whichever unit you take. So that turns out to be 1.5 miles per minute. And if you go about distance covered per second, that would mean 44 yards per second.
Okay, so we have had miles, kilometers, and yards also. Absolutely. But 1 yard is about 3 feet. Absolutely, that makes the pitch 66 feet. 22 yards into 3 makes it 66 feet. Okay, that means the distance from the bowler to the batsman is 22 yards or 66 feet. Absolutely. And if we take the formula of speed is equal to distance upon time, now we have to calculate the time. Absolutely. That means it is a distance upon the speed. Now, distance as we've calculated is rounded off to 19.33 because obviously the bowler and the batsman are not going to be exactly at 22 yards apart. So you mean to say the distance between the two stumps on either side is Or 22 yards? Maybe factually between the batsman and the bowler. Okay, but then the batsman also stands a couple of feet inside the crease. Absolutely. And also the bowler bowls, in fact, from behind the crease. exactly. So that also. That works out to be roundly 19.33 yards. Okay, so we have 22-yard distance between the two stumps, but the distance between the batsman and the bowler would be approximately. 19.33 yards. Yes, so the time taken for Brett Lee's ball to reach the batsman, Brett Lee bowling at 144 kilometers per hour or 90 miles per hour, whichever unit you take. Or 44 yards per second. Exactly, so the time taken will be. Distance upon speed, that makes it 19.33 upon 44. That is equal to. So that means 0.44 seconds within a flash of the eye. The ball is. On the stumps. Exactly. Now let's take an example where it's not a fast bowler. Let's take a spinner. So the only factor that will vary will be the speed. Exactly. So for example, if it is, let me say, Harbhajan Singh. Okay, so now he's a spin bowler. The speed comes down to 50 miles per hour. Say. Okay, so if Harbhajan Singh is bowling at 50 miles per hour, that means he is bowling at 80 kilometers per hour. That's the conversion. Absolutely. Then how much time will it take for the ball to reach the batsman? So again, the distance is 19.33. It does not change. Right. Upon the speed, so the speed is 50 miles per hour. And that gets converted into 24.44 yards per second. Now one thing out here we need to remember is that because the distance of the pitch that we have taken, or the distance between the bowler and the batsman, is in yards, so we have to convert the speed also from miles per hour, not just to kilometers per hour, but yards per second. Absolutely. And then we can actually divide the two numbers to actually get the time taken. Yes, so now 50 miles per hour works out to be 24.44 yards per second. If you just fit it in the formula, that's distance upon speed. It makes it to be 19.33 yards upon 24.44 yards. That gives you 0.79 seconds. That means if Harbhajan Singh is bowling at 50 miles per hour, then the time taken to cover a distance of 19.33 yards till the batsman would be just 0.79 seconds. Absolutely, a little more than what Brett Lee bowled. Absolutely. Stay tuned for some more time factor elements in Mathematics on Radio. Radio Math on 107.8 MHz, Master Radio. Have you ever thought about maths? Is it good or is it bad? Have you ever related maths with romance? बॉस अच्छा सोचोगे नहीं तो अच्छा होगा कैसे? Here is an example. I met one met two and fell in love. Together their one soul formed three. Isn't it nice? So public, अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा. तो सुनते रहो मैथ्स ऑन रेडियो. तो दोस्तों यहाँ पर पंकज और आशीष ने हमें बखूबी बताया कि खेल के माध्यम से गणित का कन्वर्जेंस कैसे किया जाता है, यानी किलोमीटर, माइल्स, कितने सेकंड्स में कितना एथलीट कितना जोर से भागा और क्या रिकॉर्ड बनाया, ये सभी हमने इसके जरिए सुना. वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो जैसे हम कहे टीम गेम होते हैं, क्रिकेट कहे, हॉकी कहे, फुटबॉल कहे, तो उनमें गणित का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इंडिविजुअल गेम कहे जैसे एथलेटिक्स का हमने, लॉन्ग जंप, हाई जंप, और अगर कहे तो कबड्डी भी काफी इसमें मैथ्स का और एक कैलकुलेशन पार्ट का अंदाजा आ सकता है. लेकिन हालांकि हमें जब हम खेल खेलते हैं तब ये बातें पता नहीं होती. अगर हम इसके बारे में बहुत ही ध्यान से सोचे तो ये बात पता चलती है कि इस विषय में भी गणित कितना महत्वपूर्ण है. और जैसे हमने आपसे कहा था कि कैलेंडर और समय में भी यहाँ पर गणित का काफी उपयोग होता है, वहां पर एक हम कहे कि जिसका एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स काफी ज्यादा होता है. तो अब हम जानकारी लेते हैं कैलेंडर में मैथ्स कैसे यूज किया जाता है. हमें जानकारी देने के लिए आ रहे हैं उदय, जो हमें बताएंगे अलग अलग कैलेंडर्स के बारे में और अलग अलग तिथियों के बारे में. दोस्तों, रेडियो मस्त पर आपका मस्त स्वागत है.
दोस्तों, आपने कैलेंडर तो जरूर देखा होगा, कल भी आज भी। जब से समझ आई तब से आप देख रहे हैं इस कैलेंडर को। साल के किस महीने में कौन सी तिथि, छुट्टी के दिन, ऐतिहासिक महत्व के दिन, सबकी जानकारी मिलती है इस कैलेंडर में। भारतीय कैलेंडर यानी पंचांग, इसकी मदद से यात्रा, विवाह का मुहूर्त, शगुन, अपशगुन का पता लगाया जाता है। दोस्तों, कैलेंडर शब्द लैटिन भाषा के कैलेंडर शब्द से बना है। पुराने जमाने में रोम के लोग महीने का पहला दिन यानी कैलेंडर कहते थे। कैलेंडर कई प्रकार के थे। मिस्र यानी इजिप्ट का कैलेंडर 12 महीनों का यानी 360 दिनों का होता था। करीब 4000 ईसा पूर्व में प्रत्येक वर्ष के अंत में 5 दिन एडिशनल जोड़े जाने लगे, यानी सप्लीमेंट्री दिन। बेबीलोनिया का कैलेंडर यानी वहाँ का वर्ष वसंत ऋतु से शुरू होता था। वर्ष 354 दिनों का होता था। बारी बारी से एक महीना 30 दिनों का और दूसरा 29 दिनों का होता था। राजा किसी भी समय अपनी इच्छा से वर्ष में एक माह जोड़ देता था। कभी कभी ऐसा होता था कि साल के 13 महीने हो जाते। काफी वर्षों के बाद दूसरे देशों के अनुसार इसमें सुधार किया गया। प्राचीन रोम का कैलेंडर मार्च से शुरू होकर दिसंबर में समाप्त होता था। साल में 295 दिन हुआ करते थे। कुछ महीनों के नाम देवी देवताओं के नाम पर रखे गए। क्योंकि युद्ध में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे, मार्च का नाम युद्ध में आगे बढ़ाने वाला पहला महीना बनाया गया। 700 ईसा पूर्व में जनवरी और फरवरी को जोड़कर इसे 12 महीनों का बनाया गया। कैलेंडर 2 तरह का होता है, एक चंद्रमासों पर तो दूसरा सौर वर्ष पर आधारित होता है। एक चंद्रमास 29.5 दिनों का होता है। भारतीय पंचांग तथा मुस्लिम कैलेंडर चंद्रमासों पर तो दूसरा 365 दिनों का सौर वर्ष पर आधारित होता है, जो जनवरी से दिसंबर तक का होता है। रोमन कैलेंडर जो चंद्रमास पर आधारित था, आगे चलकर सौर वर्ष पर आधारित कर दिया गया। दूसरे, चौथे, 7वें, 9वें महीने 30 दिन के ये थे अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। फरवरी को छोड़कर शेष महीने 31 दिन के, तो फरवरी के हिस्से में आए 28 दिन। 1582 ईस्वी में ग्रेगरी पोप ने वर्ष के 365 दिन तय किए। उनके नाम पर ही ये कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है। कहते हैं कि दोस्त शून्य की तरह होते हैं। वैसे तो उनकी कीमत समझती नहीं, लेकिन जिससे जुड़ जाते हैं उनकी कीमतें बढ़ा देते हैं। ऐसे ही सभी दोस्तों के लिए मस्त रेडियो लाया है मैथ्स ऑन रेडियो सीजन 2। कैलकुलेशन से हम हो गए बेजार, अब तो समझ न आए मैथ्स हमको यार। अब क्या करें, कहाँ पढ़े, मैथ्स ऑन रेडियो पर, मैथ्स ऑन रेडियो पर, मैथ्स ऑन रेडियो पर, मैथ्स ऑन रेडियो 107.8 मैथ्स ऑन रेडियो, 107.8 मैथ्स ऑन रेडियो, 107.8 मैथ्स ऑन रेडियो। अयो वेणुगोपाल, मुझको बता कि अगर प्रसाद अन्ना के पास 10 चॉकलेट और 10 रसगुल्ले है और अगर उसमें से वो 9 चॉकलेट और 7 रसगुल्ले खा लेता है तो उसके पास क्या है रे? डायबिटीज। अयो वेणुगोपाल, उसका आंसर है 1 चॉकलेट और 3 रसगुल्ला। तेरे को तो बिल्कुल नहीं आता रे मैथ्स। अब मैं क्या करूँ अन्ना? अरे मस्त एफएम सुनने का ना रे, 107.8 मस्त एफएम। फिर सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे मैथ्स ऑन रेडियो आता है रे, वो तेरे को 100% सिखा देंगे। நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருப்பது மும்பை பல்கலைக்கழகம் மாணவர் ஒலிபரப்பு ரேடியோ மஸ்ட் 107.8 FM. Tiny baby ant and his auntie bee were climbing up a tree. Tiny baby ant saw some monkeys play. Look, 11 monkeys on the tree today. That's a lot of monkey, said his auntie bee.
Are you sure there are 11? Let me count and see. Auntie B then counted and only got to 10. She checked her maths 5 times and 5 more times again. She didn't get 11, not even 9 or 8. 10 plus 0, monkeys, and not even one giant ape. She turned to Tiny Ant, count them one more time. He counted one by one and got one more than 9. 10 plus 0 monkeys on a tree today. 10 fun-loving monkeys that really like to play. मैं समय नहीं हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर समय आपको बिल्कुल याद होगा, महाभारत सीरियल जब शुरुआत होती थी तो हरीश भिमानी साहब की आवाज थी मैं समय हूँ करके, लेकिन मैं यहाँ पर समय नहीं हूँ और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैथ्स कैसे अप्लाई किया जाता है समय में। तो आइए मिलते हैं आशीष और पंकज से जो हमें बताएंगे अब एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स इन समय। Hello friends, welcome once again to the time factor in mathematics on radio, only on 107.8 FM. I'm Pankaj. And I'm Ashish, Radio Mat on 107.8 megahertz. Right. Now, a minute is how many seconds, Ashish? 60 seconds. Okay, and an hour is how many minutes? 3,000. 60 minutes, that makes it 3,600 seconds. You got me over there. Exactly. Now, let's look out for some time factors in mathematics in the game of cricket. Now, you remember, Yuvraj Singh hit a fastest half century in a T20 World Cup against England, and they had 6 sixes in the innings. Absolutely, I remember, and Stuart Broad also remembers. Yes, because Stuart Broad was the bowler. I guess it was at Johannesburg that the match was played. Yes, I think so. Yes, and there he took 13 minutes to hit the 6 sixes in an over. Absolutely. And that comes to 780 seconds just to hit those 6 sixes. Absolute wow over there. Now, since we're talking about the time factor, let us go to another powerful hitter, Chris Gayle. Now, everybody knows he's a big, powerful hitter. He hit the fastest century against South Africa. This was in the opening match of the T20 World Cup. We have a factor that says it's 63 minutes to complete this fastest century. 63 minutes, again, if you go by the formula, 1 minute equals to 60 seconds. That makes it a cumulative 3,780 seconds. Talking about the shortest completed innings, that was by Australia against England in a test match at Southampton in 2005. That match, of course, England won by 100 runs, but Australia were bundled out in just 64 minutes. That comes to just 3,840 seconds for the Aussies to fall down. Now we go to the shortest match that was played between South Africa and West Indies. This feat was taken at Port Elizabeth in 2007. The fact that West Indies won that match by 5 wickets, the shortest match was calculated to be of 113 minutes duration. Now again, going by the calculation of 1 minute equals to 60 seconds, this becomes 6,780 seconds. Now we come to the longest individual innings by a player, and again the name is South African captain Graeme Smith. 89 not out against Australia, and this was at Johannesburg in 2006. Can you guess 89 minutes? That makes it 5,340 seconds. Somebody was actually monitoring the second needle in the clock. शाम हो या सवेरा, हमको गिनती ने हर तरफ से घेरा. चाहे हो घड़ी की टिक टिक या हो गेम की कोई स्टिक, हर जगह देखो तो गिनती है फिक्स. शाम हो या सवेरा, हमको गिनती ने हर तरफ से घेरा. सुबह उठे तो घड़ी में बजे हैं 6, गिनती ने शुरू किया बजाना घड़ी का डिस्क. शाम हो या सवेरा, हमको गिनती ने हर तरफ से घेरा. हर लम्हा सिखाता है गिनती का मोल, ए भाई जरा तोल के तो बोल. शाम हो या सवेरा, हमको गिनती ने हर तरफ से घेरा. तो दोस्तों, अगर समय के साथ चलना है या यूं कहे समय से भी आगे बढ़ना है तो समय पर मैथ्स सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गणित जो है, मैथ्स जो है, वो जिंदगी के हर पहलू में, और नोइंगली अननोइंगली हमने कई बार पता कर चुके हैं हम ये बात कि हमें मैथ्स का हर जगह पर, हर पहलू पर उपयोग करना पड़ता है. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप अब तक तो समझ ही चुके होंगे कि गणित का कहाँ और कैसे कैसे उपयोग होता है. और कुछ स्कूली बच्चों के साथ हम बात कर रहे थे
और ये बात हमारी चल रही थी कि किन बच्चों को मैथ्स अच्छा लगता है। हालांकि ये बहुत ही हम कहें तो रेयर कमोडिटी होती है। ज्यादातर बच्चों में मैथ्स के नाम से एक डर, एक खौफ पैदा होता है। अगर आप किसी बच्चे को घर पे रखें और उन्हें हॉरर मूवी दिखाए तो वो कम डरेंगे, इससे कई गुना ज्यादा वो मैथ्स से डरते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या खौफ है, ऐसा क्या डर है जो मैथ्स के बारे में उनके मन में काफी देर तक रहता है, और इसे हम थोड़ा दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर विवेक बेलेकर। मेरा नाम है आयशा और मैं न्यू माहिम इंग्लिश स्कूल से आई हूँ और मुझे मैथ्स लिटिल बिग पसंद है, जैसे कि प्लस माइनस, डिवीजन, जैसे मल्टीप्लिकेशन। पर मुझे अलजेब्रा नहीं पसंद और मुझे मैथ्स जरा थोड़ा ही पसंद है। नमस्कार और आदाब, मेरा नाम कहकशा है और मैं बांद्रा अंजुमन में पढ़ी हूँ। एसएससी पास हूँ। पहले मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मेरी टीचर ने अच्छे से पढ़ाया और मुझ पे बहुत भरोसा रखते थे कि हाँ ये बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत ध्यान देती है, तब से मेरा ध्यान और भी लगने लगा मैथ्स में। इसी तरह मैं मैथ्स में अच्छे नंबर से पास हुई। तो मेरी टीचर ने मुझे पूरी क्लास के सामने मुझे किट कैट दिया और पूरे बच्चों ने मेरे लिए क्लैप किया और इसी तरह हमारा एसएससी में बहुत अच्छा मार्क्स आया। तो मुझे इसलिए मैथ्स बहुत पसंद है। थैंक यू। मेरा नाम दुर्दाना और मैं माउंट मेरी कॉन्वेंट से पढ़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं इंग्लिश ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैथ्स में कैलकुलेशन है, ये सब है, इसके लिए मुझे नहीं अच्छा लगता है। और बस यही बात है और कुछ नहीं। हमारे साथ है डॉक्टर विवेक बेलेकर, हु इज प्रोफेसर एट द डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। डॉक्टर विवेक, आपने सुना हमारे सुनने वालों ने क्या कहा मैथ के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? पंकज, ये जो कहकशा का जो एग्जाम्पल है वो और आयशा का जो एग्जाम्पल है, ये दोनों में हमें एक खूबसूरत चीज दिखाई देती है कि इनको मैथ्स में रुचि है, लेकिन वो जो इंटरेस्ट इनको मैथ्स में आया है वो आया है उन्हें, पहले नहीं था। किस वजह से, किस तो भी कोई वजह हुई जिसके वजह से वो इंटरेस्ट उन्हें आ गया। कहकशा का एग्जाम्पल देखते हैं तो टीचर ने उसके ऊपर भरोसा दिखाया और उसके वजह से उसने मेहनत अच्छी की और उसे अच्छे अंक आए। उसे अच्छे अंक आए इसलिए उसे कुछ रिइंफोर्समेंट दिया गया, क्लास के सामने उसकी प्रशंसा की गई। सो ऑल दीज थिंग्स आर, बोथ दीज केसेस आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ इफ you promote and if you show confidence, if you promote students to do maths and if you show confidence in their ability to do maths, then they will develop interest, they'll develop some self-confidence of doing it on their own and they'll do it. See, the most important component that we learn from Kahkasha's story is the self-confidence thing. Right. So perhaps teachers have to show confidence in students instead of saying that you can't do it. Right. They have to say that you can do it. Perhaps you need to take more effort. So instead of saying that they are wrong, they have to tell them how they can be right. Exactly. Probably appreciation and incentive can be always a good step towards creating more interest among children in math. Perhaps school children enjoy the appreciation in front of the class. Yes. And that is something that's very interesting, which is a very easy tool that is available. Also, could this be some kind of a message for parents? Yes. Instead of criticizing the kids for not doing maths, if they show some amount of bharosa, as Kahkasha is saying, in their abilities and encourage them to do it, and instead of punishing them, if they reinforce the good part, then that will help them. डरना नहीं है हमें मैथ्स से, आगे बढ़ना है मैथ्स में। डरना नहीं है हमें मैथ्स से।
आगे बढ़ना है मैथ्स में तो आओ मैथ्स सीखे हम तो सुने मैथ्स ऑन रेडियो। परेशानी है कैलकुलेशन से, परेशानी है थ्योरम से, अरे परेशानी है हमें मैथ से तो आओ सुने हम मैथ्स ऑन रेडियो। डरना नहीं है हमें मैथ्स से, आगे बढ़ना है मैथ्स में, डरना नहीं है मैथ्स में, आगे बढ़ना है मैथ्स में तो आओ मैथ्स सीखे हम। 107.8 FM पर, हाँ FM पर तो सुने मैथ्स ऑन रेडियो। अरे नोबिता, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? डोरेमोन, मुझे मैथ्स में बहुत सारा होमवर्क मिला है, लेकिन मैथ्स मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। अब मैं क्या करूँगा डोरेमोन? मुझे टीचर कल क्लास में मारेगी। मैं मार नहीं खाना चाहता हूँ डोरेमोन, मुझे बचा लो प्लीज, मेरी मदद करो। शांत हो जाओ नोबिता, इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है? तुमने सुना नहीं, मस्त FM पर हर दिन रेडियो पे मैथ सिखाया जाता है। क्या सच्ची डोरेमोन? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। हाँ नोबिता, इतना ही नहीं, इस शो की खास बात है कि मैथ को कहानियों की मदद से सिखाया जाएगा। तो सुनना मत भूलना, हर दिन सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7 बजे मैथ्स ऑन रेडियो और 107.8 FM मस्त रेडियो। थैंक यू डोरेमोन। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विश्वजीत और आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स इन कैलेंडर, इन स्पोर्ट्स, इन टाइम एंड इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आपको हमारे इस एपिसोड के बारे में हमें फीडबैक देना हो, हमें कुछ जानकारी देनी हो, तो आप हमें लिख सकते हैं radiomust@gmail.com। वहीं पर हम हमारे फेसबुक पेज पे भी हमेशा अपलोड करते रहते हैं, हमेशा अपडेट्स देते रहते हैं। हमारा फेसबुक पेज आप लाइक कर सकते हैं, रेडियो मस्त कम्युनिटी रेडियो। अगर आपने हमारा कोई मैथ्स ऑन रेडियो सीजन 2 का कोई एपिसोड मिस किया हो तो आप पॉडकास्ट के जरिए फिर एक बार इसे सुन सकते हैं mastradio.in पे। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हुए थे पंकज, उदय, आशीष और डॉक्टर बेलेकर। आपने जो सुरीली आवाज सुनी थी वो थी किरण की और इस एपिसोड का प्रोडक्शन किया था डॉक्टर नीरज हातेकर ने। इस एपिसोड को एडिट किया गया पंकज अठौले के द्वारा। सो सिंपल है, यानी मैथ से अगर आप है परेशान तो ट्यून करिए मस्त रेडियो मेरी जान। Maths on Radio, a program catalyzed and supported by National Council for Science and Technology Communication, Department of Science and Technology, New Delhi.